کہنے کے ساتھ ہی وہ بھاگ کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ ساتھ کتنی دیر تک اس کی خوشبو کو اپنے آس پاس محسوس کرتا رہا تھا۔ سبھی نے گھر آنے کے بعد اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ اپنی ماں کے گوش گزار دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے رشتے کروانے والی بوا کے وہ لتے دیے کہ اسے اپنی جان بچا کر فرار ہونا مشکل ہو گیا۔ اگلے روز رات یعنی گھر والوں کے سونے کے بعد وہ ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر باہر برآمدے میں لے آئی اور کمرے کا دروازہ آہستہ سے بھیڑ کر 7 کا کانٹیکٹ نمبر پریس کرنے لگی۔ دوسری طرف شاید اسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی، لہٰذا دوسری پیل پر ہی سبھی کی کال پک کر لی گئی۔ ہیلو 7، میں سبرینا۔ ہاں کہو، کیسے یاد کیا؟ دوسری طرف وہ یقیناً خوش ہوا تھا۔ بس یوں ہی سوچا تمہاری خیریت دریافت کر لی جائے۔ تھینکس جناب، آپ کو ہماری خیریت دریافت کرنے کا خیال تو آیا۔ اچھا تم فون رکھو، میں تمہیں کال بیک کرتا ہوں۔ بولتے بولتے اچانک اس نے کہا تو وہ چونک گئی۔ کیوں؟ اچھا تم رکھو یار، میں بتاتا ہوں ابھی۔ دوسری طرف کال کٹ کرتے ہوئے سعد نے کہا تو مجبوراً سبرینا کو ریسیور کریڈٹ پر ڈالنا پڑا۔ پھر اگلی ہی پل گھنٹی بجی تو اس نے گھر والوں کے بیدار ہونے کے ڈر سے فوراً کال اٹھا لی۔ ہاں بولو، میری کال کیوں کاٹ دی تھی تم نے؟ کال اٹھاتے ہی پہلا سوال اس نے یہ کیا تو وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولا، سمجھا کرو نا یار، تم لینڈ لائن نمبر سے بات کر رہی تھی۔ میرا ارادہ تم سے رات بھر بات کرنے کا ہے۔ یقیناً تم اپنی فرینڈز کو اتنی لمبی کال کرنے کی عادی نہیں ہوگی، لہذا ہو سکتا ہے بل دیکھ کر تم سے پوچھ گچھ کی جاتی، اسی لیے میں نے کال پک کر لی۔ چلو اچھا کیا، ویسے میں تمہارا بل افورڈ کر سکتی تھی۔ ہاں جانتا ہوں بھائی، آپ چاہیں تو کھڑے کھڑے مجھ سے 10 خرید سکتی ہیں، اس لیے تو یہ بندہ بن مول بک گیا آپ کے ہاتھوں۔ طنز کر رہے ہو مجھ پر؟ قدرے مدھم لہجے میں اس نے کہا تھا تو وہ بھرپور انداز میں کھلکھلاتے ہوئے بولا، میں یہ گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ اب زخم کیسے ہیں تمہارے؟ فوراً بات بدلتے ہوئے اس نے کہا تھا، وہ سابقہ شوق موڈ میں بولا، آئی ڈونٹ نو، اگر آ کر دیکھ لو، ویسے 2 دن سے ان زخموں نے اپنے مسیحا کو نہیں دیکھا، لہٰذا ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب تم اپنا خیال نہیں رکھ رہے؟ ہاں نہیں رکھ رہا میں اپنا خیال، ورنہ اور نہ رکھ سکتا ہوں۔ تمہیں زیادہ فکر ہے تو آ جاؤ تم خیال رکھنے کے لیے۔ اب کہ وہ قدرے سنجیدہ ہوا تھا، تبھی وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولی، پٹ جاؤ کے ساتھ بتا رہی ہوں میں، تو پیٹ ڈالو نا یار، ہم تو کب سے دل ہاتھ میں لیے آپ کے منتظر ہیں۔ وہ پھر ہنسا تھا۔ تبھی سبرینا تب کر رہ گئی، فضول بولنا بہت آتا ہے تمہیں، تم سے ہی سیکھا ہے۔ وہ کہاں باز آنے والا تھا، لہٰذا سبھی نے اس بار خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ اچھا سوری، یہ بتاؤ ابھی کیا کر رہی ہو؟ اس کی خاموشی محسوس کر کے وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس یوں ہی فارغ بیٹھی تارے گن رہی تھی۔ سبھی نے اسی کے انداز میں جواب لوٹایا تو قدرے وہ انجوائے کرتے ہوئے بولا، ویل پھر کہاں تک پہنچی؟ ابھی تو کچھ لاکھ ہوئے ہیں، باقی تم گن لو۔ ٹھیک ہے، لیکن دیکھو تمہاری نگاہوں کے این سامنے ایک بڑا سا ستارہ ہوگا، وہ خاص میرا پیغامتی اسٹار ہے۔ تم دنیا میں کہیں بھی چلی جاؤ، یہ اسٹار تم تک میرا خیال پہنچاتا رہے گا۔ کیسے؟ زبردست، پاگلوں سے ایسے ہی باتیں متوقع ہو سکتی ہیں۔ اس بار وہ پھر دل کھول کر ہنسا تھا۔ کہہ لو یار، راہ عشق میں قدم رکھنے سے پہلے ہم بھی اسٹار تھے، لیکن اب تو سب پاگل کہنے لگ گئے ہیں۔ ایک تم بھی کہہ لو گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ دوسری طرف اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا تھا، جب وہ مسکراتے ہوئے بولی کہ صاحب، کیا ناچیز آپ سے یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتی ہے کہ آخر اتنی نکمی لڑکی میں آپ کو ایسا کیا نظر آیا جو آپ اس کنیز کو اپنا قیمتی دل دے بیٹھے ہیں؟ مزے کا سوال ہے، پر کاش ہم آپ کو اس کا جواب دے سکتے۔ انارکلی، تم نہیں جانتی، ہم فقط چند گھڑیوں میں آپ کے اسیر ہو گئے تھے۔ مختصر لفظوں میں اس نے اپنی محبت کی کہانی اس کے گوش گزر کر دی تھی۔
जवाब में वो खासी खुश होकर हंसती तो साथ ठंडी आह भरते हुए बोला, काश ये फूल उस वक्त हमारे दामन में गिर रहे होते। शट अप, सो जाओ, अब रात के 3 बज रहे हैं। उसका चेहरा गुलनार हो गया, पर साथ का मूड तब्दील नहीं हुआ। नींद नहीं आ रही, तुम आकर लोरी सुनाओ तो शायद हम भी सो जाएंगे। चुप करो, मुझे नींद आ रही है, लिहाजा खुदा हाफिज। कहने के साथ ही उसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया तो मजबूरन साहब को भी सब्र के घूंट पीने पड़े। सबरीना की घरेलू हालात आजकल खासे खराब हो रहे थे। बढ़ती हुई महंगाई ने दूसरे मस्तोसित और लोअर क्लास घरानों के साथ साथ एक के घर को भी खासा मुतासिर किया था। घर में अब हर वक्त लड़ाई रहने लगी थी, लिहाजा मजबूर होकर सभी को अम्मा की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकलकर जॉब तलाश करना पड़ी थी। निदा ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद उससे मेलजोल रखना जरा कम कर दिया था। बहुत सारे दिनों की ख्वारी के बाद बिलाखिर एक कंपनी में उसे मुलाजमत मिल गई थी और वो उस पर बेपनाह मसरूर थी। डूबते को तिनके का सहारा के मस्ताक उसे अपने 6 लाख से कम नहीं लग रहे थे। मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी जॉब का पहला दिन था, लिहाजा शौक में सुबह जल्दी बेदार होकर टाइम से पहले ही ऑफिस पहुंच गए। पहले उसे घबराहट का एहसास हुआ, मगर जल्द ही वहां एक लड़की से उसकी दोस्ती हो गई तो ये एहसास भी रफ्ता रफ्ता जाता रहा। पिछले 15 दिनों से उसने साथ से कोई राब्ता नहीं किया था। वो मिस बेल देता रहा था, मगर सबरीना जानबूझकर बेनियाज बनी रही। उस रोज अम्मा की तबीयत खराब होने के बायस वो खासी लेट हो गई थी, मगर वाई नसीब कि उसी रोज एमडी के ऑफिस में उसकी तलबी हो गई। उसके लिए ये तजुर्बा चूंकि नया था, लिहाजा वो अच्छी खासी कंफ्यूज हो गई थी। दिल ही दिल में आलतू जलालतू व्यर्थ करती बाकायदा इजाजत के बाद वो एमडी के ऑफिस में दाखिल हुई तो निगाहों के सामने साद असनानी को बैठे देखकर ठिठक गई। तुम कुछ ही लम्हों के बाद खुशगवार हैरानगी ने वो चिल्लाई तो साद ने फौरन उसे लताड़ कर रख दिया। व्हाट नॉनसेंस आप बोल रही है मिस सबरीना की, इस वक्त आप अपने ऑफिस के मालिक से बात कर रही हैं। सबरीना को जो धचका उसे एमडी के रूप में देखकर लगा था, उससे कहीं ज्यादा हैरानगी उसके बदले हुए अतवार देखकर हुई थी। आई एम सॉरी सर, बमुश्किल सही उसने फौरन से खुद को संभाल लिया था। इट्स ओके, आइंदा भी ख्याल रखिएगा। मस्जिद में कारोबार के मामले में उसूलों का बहुत सख्त हूँ, बिलावजह छुट्टी करना या लेट आना मुझे कबूल नहीं, समझिए आप। वो उसका ये सख्त रूप पहली बार देख रही थी, लिहाजा हजार जब्त के बावजूद भी आंखें आंसुओं से भर गई। सॉरी सर, एक्चुअली मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए देर हो गई। निगाहें जमीन पर गाढ़े बहुत मुश्किल से वो वजाहत दे पाई थी। जब वो फिर से सख्त लहजे में बोला, आई डोंट केयर इट, ये आपका पर्सनल मामला है, मुझे ऑफिस टाइम पर आपकी हाजिरी यहाँ चाहिए, अंडरस्टैंड। जी। उसका गला रोंधा रहा था। इतनी तस्वीर के बाद मजीद उसके सामने खड़ा रहना महाल हो रहा था, मगर मजबूरी ये थी कि उसकी इजाजत के बगैर वापस भी नहीं पलट सकती थी। ओके, अब आप जा सकती हैं। गहरी निगाहों से उसकी नम आंखें और सुर्ख चेहरे के बकौर जायजा लेते हुए उसने कहा तो सभी अपनी आंखें रगड़ती हुई फौरन वापस पलट गई। 1 मिनट, अभी आपके हाथ दरवाजे के हैंडल पर था कि उसने फिर रोक लिया। जल्दी है आपको, जॉब मिलने की ट्रीट नहीं देंगी? अक्सर बदलते हुए दोस्ताना लहजे में उसने कहा तो सभी ने बेसाख्ता पलट कर उसकी तरफ देखा, जो अब सीने पर दोनों बाजू बांधे पुरशौक निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। यू चीटर, लपट कर उसकी तरफ बढ़ते हुए उसने साथ के सीने पर मुक्कों की बारिश कर दी, जिससे वो खिलखिला रहा था। कहो, कैसी लगी हमारी एक्टिंग? अगले ही पल उसके आंसू अपने हाथ से साफ करते हुए उसने पूछा तो सभी ने सामने मेज पर एक फाइल उसके सर पर मारी।
मरो तुम खबरदार, जो आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश की तो। करूंगा कोशिश, क्या कर लोगी तुम? जान ले लूंगी तुम्हारी, वो तंग आकर बोली और वो लुत्फानंदोज होते हुए बोला, मोस्ट वेलकम। ये जान तो पहले ही आप पर निछावर कर रखी है। खैर छोड़ो, ये बताओ इतने दिनों तक राब्ता क्यों नहीं किया, और ये अचानक जॉब करने का शौक क्यों चढ़ा गया तुम्हें? बस यूं ही, मुलाजमीन की तनख्वाह पूरी नहीं हो रही थी, लिहाजा मैंने सोचा खुद जॉब करके बेचारों की तनख्वाह पूरी कर दिया करूं। साद एक मर्तबा फिर उसके अंदाज पर दिल खोल कर हंसा था। ओके चलो, मेरी ट्रीट निकालो। मिल जाएगी ट्रीट भी, पहले तनख्वाह तो मिल दे दो। चलो फिर आज मेरी जानिब से पर्ल कंट्री नेशनल में तुम्हारा लंच पक्का है। अब ये ना पूछना कि वो किस खुशी में। नहीं पूछती, फिलहाल मुझे काम करने दो। अम्मी की वजह से आज जल्दी घर जाना है। काम तो कर रही हो ना यार। वैसे अम्मी को क्या हुआ है? कुछ खास नहीं, कल से बुखार है, ऊपर से बाबा बात पे बात चिक चिक करते रहते हैं। ये साथ का बख्शा हुआ एतमाद ही था कि वो उससे अपना आप शेयर करने लगी थी। उस वक्त भी अपने दिल का दर्द बेसाख्ता उस पर अया कर गई थी, तो साथ भी असहद संजीदा हो गया। मायूस नहीं होते, डोंट वरी सिली गर्ल, तुम इन चक्करों में ना पड़ो। अब जाओ, शाबाश, अपना काम करो। भाईजान किसी भी वक्त अचानक आ जाएंगे, दोनों को डांट पड़ जाएगी। खुशगवार हैरत से सर उठाते हुए उसने पूछा था, जब वो मबहम से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, ये तुम्हें कोई शक है? नहीं, अब मैं नहीं जाऊं। नहीं, अब मैं जाऊं? ऑफ कोर्स, लंच में मिलते हैं फिर। ठीक है। इस बात में फौरन सर हिलाकर वो उसके कमरे से बाहर निकल आई। दोपहर में लंच के लिए दोनों ऑफिस से बाहर निकल आए। रमजान मुबारक का आगाज हो चुका था। हर तरफ एक अजीब सा पुरसुकून माहौल हो गया था। साथ का इरादा मजीद तालीम के लिए यूरोप जाने का था, मगर सबरीना के लिए उसने अपनी मजीद तालीम को फिलहाल मुलतवी इल्तिवा में डालते हुए संजीदगी से ऑफिस आना शुरू कर दिया था। इसी की वजह से सबरीना को तरक्की मिली थी और वो बतौर ऑफिस सेक्रेटरी अपने फराइज सर अंजाम दे रही थी। साथ उसका बच्चों की तरह ख्याल रखता था। वो जो खुद सबका लाडला था, सभी की मामूली मामूली बातों पर खफा होने के बाद उसे सौ मिन्नतें करके मनाता था। इन दिनों भी दोनों के दरमियान किसी मामूली बात पर झगड़ा हो गया था, लिहाजा 3 दिन तक वो एक दूसरे से रूठे रहे। साद अब 3 दिनों में ऑफिस में नहीं आया था, जिस पर सभी मजीद सुलग उठी। चौथे रोज दिन के 11 बजे के बाद वो ऑफिस आया तो उसकी बड़ी हुई शेप और सुर्ख सूजी हुई आंखों ने सभी का दिल जैसे मुट्ठी में ले लिया। पहली बार वो खुद उसे मनाने का इरादा रखती थी, मगर साद ने उसे उसका मौका ना दिया। वो उसके केबिन में गई तो साद हम्माद यजदानी की पर्सनल सेक्रेटरी के साथ बातों में मसरूफ था। उसे अंदर आते देखकर भरम होते हुए बोला, किसी के रूम में एंटर होने से पहले नॉक करते हैं। मिस सबरीना, आपको किसी ने तमीज नहीं सिखाई? सभी को इसके लहजे ने बहुत तकलीफ दी थी, लिहाजा फौरन माजरत करके उसके कमरे से बाहर निकल आई। ऑफिस में अकाउंट ऑफिसर जुनैद अब्बास के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी, लिहाजा जुनैद ने सभी की आंखों में आंसू देखे तो फौरन अपने काम छोड़कर उसकी तरफ लपट आया। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि साद वहां पहुंच गया। मिस्टर जुनैद, आप अपना काम छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने में उसने दर्द लहजे में पूछा था, लिहाजा जुनैद अब्बास फौरन संभल कर खड़े हुए। कुछ नहीं सर, मैं सबरीना रो रही थी तो मैं ये रो रही थी तो आप उनके आंसू पोंछने आ गए? ये आपका डिपार्टमेंट नहीं है। जुनैद साहब जाइए, आप अपने काम कीजिए। जुनैद साहब जाइए, आप अपने काम कीजिए। गुस्से का वो शुरू से तेज था, लिहाजा जुनैद अब्बास मौके की नजाकत को भांपते हुए फौरन वहां से चले गए। तभी वो सभी की तरफ मुतवज्जा हुआ था। ये काम छोड़ो और चलो मेरे साथ। क्यों? मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। मैं इनकार नहीं करूंगा। अगर तुम अपनी रुसवाई नहीं चाहती तो चलो मेरे साथ, नहीं तो बसूरत दीगर में हाथ पकड़ कर भी ले जा सकता हूँ।
सबरीना उसकी जिद से अच्छी तरह वाकिफ थी, लिहाजा मजबूरन काम समेट कर उसके पीछे चली आई। गाड़ी में भी साद ने उससे कोई बात नहीं की थी, अलबत्ता होटल में अपनी पहले से रिजर्व करवाई हुई टेबल पर पहुंचने के बाद वो उससे मुखातिब हुआ था। तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे मामले में कितना हसास हूँ, कोई बेमकसद तुम्हारी तरफ निगाह भर कर देखे मुझे ये भी गवारा नहीं। इसके बावजूद तुम हंस हंस कर लोगों से बातें करती फिरती हो। जुनैद अब्बास लोग नहीं, मेरा अच्छा दोस्त है। सभी खुद गुस्से से भरी बैठी थी, लिहाजा उसने उसके अंदाज में जवाब लौटाया तो मजीद मुश्तअल हो उठा। शट अप, आइंदा अगर मैंने तुम्हें उससे बात करते हुए देख लिया तो उसे ऑफिस से निकालने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। तुम अपनी दौलत का बेकार रौब मुझ पर नहीं झाड़ सकते। इससे पहले कि तुम उस पर पुरखुलूस को कोई सजा दो, मैं खुद ये जॉब छोड़ रही हूँ। शदीद तल्ख लहजे में कहने के बाद ही वो उसके सामने से उठकर होटल से बाहर निकल आई थी। रुको सबरीना, वो सड़क क्रॉस करना ही चाहती थी जब साथ उसके पीछे लपट आया। जुनैद पुरखुलूस है ना तुम्हारे लिए, इसकी खातिर तुम अपनी जॉब छोड़ सकती हो ना। इतना कहने के बाद ही साथ ने हाथ में पकड़ी छड़ी से अपनी शेरक काट दी थी। ये सब इतना अचानक हुआ कि सभी को उसके इस अमल से बाज ही न रख सकी। वो साअत को जानती थी, बेशक वो उसके मामले में इतना ही जज्बाती था, पर जज्बात में अपनी जान से गुजर जाएगा अंदाजा नहीं था उसे। सो बदहवासी में लपट कर अपना दुपट्टा उसकी कलाई पर बांध कर खुद खून रोकने की कोशिश की थी। ऐसा दूसरी बार हुआ था जो साद ने उसकी खातिर अपनी जान खतरे में डाली थी। इस वक्त वो रोना नहीं चाहती थी, पर साद की हालत ने उसे रुला डाला था। गो फौरन अस्पताल पहुंचने के बाद उसकी जान बच गई थी, मगर कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई थी। देखा, मैं तुम्हारी मोहब्बत में कुछ भी कर सकता हूँ, फिर भी मुझे सता कर मजा आता है तुम्हें। दूसरी बार मैं हॉस्पिटल में उसके करीब बैठी वो रो रही थी जब साद ने शिकवा करते हुए उससे कहा। बदले में कुछ भी कहे बगैर वो एक खामोश निगाह उस पर डालकर उठ आई थी। अगले कुछ दिन फिर सर्द जंग की नजर हो गए थे। सभी ने जुनैद के साथ पूरे ऑफिस के स्टाफ के साथ बात बंद कर दी थी, मगर साथ ही उसने उसका भी बायकॉट कर दिया था। साद उसके रवैये को बाखूबी महसूस कर रहा था। तभी चांद रात से एक दिन पहले उसे जबरदस्ती अपने साथ मार्केट ले आया था। तो नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारी खातिर मैंने मम्मा और पापा की ख्वाहिश को पसे पेश डालकर बाहर जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। मैंने आज तक तुमसे तुम्हारी फैमिली का नहीं पूछा, बस तुम्हारी खुशी का ख्याल रखा है। फिर भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? इस वक्त उसकी हालत बहुत काबिले रहम थी, लिहाजा सभी को अपना दिल मोम करना भी पड़ा। नहीं तो खुश तो इतने दिन से वो भी नहीं थी। तुम इतना फजूल क्यों सोचते हो साद? मैंने कब कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करती? प्यार करती हो तो सताती क्यों हो इतना? मैंने सिर्फ जुनैद से बात करने से मना किया था, ये नहीं कहा था कि पूरे ऑफिस से बात पर बैन लगा दो। तो क्या मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है? मैं बच्ची नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पर सर झुका के चलती रहूं। साथ के लम्हों पर महफूज कुन मुस्कुराहट बिखरी थी। फॉर गॉड सेक, तुम्हें अपना समझता हूँ तो हक जताता हूँ, वगरना हमारे सर्किल में नत नई लड़कियों की कमी तो नहीं है, मगर तुम ये बात कभी नहीं समझोगी। तुम्हारे पास अकल नाम की चीज नहीं है। तवज्जो ड्राइविंग पर रखे वो उस पर खफीफ सा तंज कर रहा था जब वो तपते हुए बोली, हाँ खुद तो बड़े अकलमंद हो ना, बात बात पर अपनी इमारत का रौब झाड़ते हो। कल कोई कह दोगे कि गरीब लड़की कौन हो तुम? उसका अंदाज ऐसा था कि साथ खिलखिलाए बिना नहीं रह सका। ओ गॉड, बहुत दिलचस्प लड़की हो, मुझे अपनी जान बहुत अजीज है। ऐसा बोलकर मैं तुम्हारे हाथों शहीद नहीं होना चाहता। वैसे भी जिस जादूगरनी ने साथ यजदानी जैसे मगरूर बंदे को अपने
शहर में देख लिया, वो गरीब कैसे हो सकती है। अच्छा मैं जादूगरनी हूँ तो तुम क्या हो? मैं तुम्हारा आशिक। बड़े मजे से उसने कहा तो सभी उसको घूर कर देखते हुए खुद भी मुस्कुरा दी। उस दिन साद और सभी ने मिलकर ढेर सारी शॉपिंग की थी। साद ने सबरीना के लिए अपनी पसंद से हर चीज ली थी और मेहंदी भी अपनी पसंद की लगवाई थी। जवाब में सभी ने भी खुशी खुशी घर वालों के साथ साथ साद के लिए भी ढेर सारी शॉपिंग की थी। शॉपिंग के बाद साद ने उसको उसके पसंद की आइसक्रीम खिलाई थी। उस रोज वो दोनों अब इतने खुश थे कि मौसम भी उनकी बलाई ले रहा था। अगले रोज ईद थी और सभी ने सुबह सुबह बेदार होकर साद के सेल नंबर पर शरारती मूड में बेल देकर बुलाकर उसे उठा ही दिया था। क्या है, इतने अच्छे अच्छे ख्वाब देख रहा था, क्यों तंग कर रही हो? खतरे झुंझला कर कॉल रिसीव करते हुए उसने कहा तो सभी मुस्कुराते हुए बोली, आज ईद का मुबारक दिन है, सो उठकर तैयार हो और उसे एंजॉय करें, ना कि शैतान की तरह सोकर बेकार करें। अच्छा दादी अम्मा सुन लिया, वैसे तुम्हें कैसे पता कि शैतान ईद के दिन सोता है? पता है ना, चलो उठो अब दोस्तों से ईद मिलो और ईद की नमाज पढ़ो। वो तो मैं पढ़ लूंगा, तुम ये बताओ कहाँ ईद मिल रही हो? वो फिर पटरी से उतरने लगा था, लिहाजा सभी ने मुंह फुलाते हुए चुपचाप कॉल काट दी थी। साथ उसकी इस हरकत से जी भर कर बनमजा हुआ था, पर अगले ही पल कुछ सोचकर मुस्कुरा दिया था। सभी घर के कामों से फारिग होकर निदा से ईद मिलने आई थी। निदा के साथ बातें करते हुए निदा ने कहा, आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सभी क्या? वेट मेरी जान, अभी पता चल जाएगा। इस वक्त इस बात को कुछ ही पल गुजरे थे कि साथ आ गया। लो आ गया तुम्हारा सरप्राइज। वो अभी इसके अल्फाज पर हैरानगी से पलट कर देख रही थी कि साथ उसकी आवाज सुनकर खुद वहां चला आया। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वाइट कलर लगे कुर्ते में वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। सभी उसे वहां देखकर बहुत हैरान हुई थी, फिर उनकी शरारत समझते हुए बोली, वालेकुम अस्सलाम एंड सेम टू यू। फरमाइए कैसे आना हुआ? बस यूं ही यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा संग दिल महबूब के दर्शन कर लूं। चलो अच्छा किया, बताइए क्या खिदमत करें आपकी? नजर आपके खूबरू सरापे पर जमाए उसने फिर से शहाना अंदाज में कहा तो साथ उसके रंग रूप को आंखों में समोते हुए मुस्कुरा कर बोला, फिलहाल तो चंद हसीन समाती दरकार हैं, अगर आप देख सकें तो। सभी उसके तकाजे पर सटपटा कर रह गई थी, जबकि निदा उसके अल्फाज को भरपूर एंजॉय करते हुए मुस्कुरा कर बोली, हुजूर मेरा ख्याल है कि ड्राइंग रूम में चलते हैं, ये जगह पुरलुत्फ बातों के लिए किसी तौर मुनासिब नहीं। बिल्कुल चलिए। सभी को उन दोनों के मापीन इतनी अंडरस्टैंडिंग देखकर हैरानी हुई थी, ताहम उसने ज्यादा महसूस नहीं किया और ना ही साथ या निदा ने उसके बारे में पूछगछ की, क्योंकि अपनी मोहब्बत और दोस्ती दोनों पर ही एतमाद था। साथ अब भी टेढ़ी निगाहें उसकी दिलकश सरापे पर जमाए बज़ाहिर निदा से हंस हंस कर बात कर रहा था, जबकि वो खामोश बैठी उसके तासरात नोट कर रही थी। बातों के दौरान ही अचानक उसने निदा को मुखातिब करते हुए कहा, जालिम समाज जी, अगर आप मेहरबानी करके हमें चंद मिनट की तन्हाई बख्श दें तो मैं आपका बेहद मशकूर होऊंगा। साथ की रिक्वेस्ट पर निदा खिलखिलाते हुए फौरन ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई, जबकि उसका दिल अब अकेलेपन की वजह से धड़ धड़ कर रहा था। कहिए जनाब, कैसा लगा हमारा यूं ईद विश करना? निदा के जाते ही वो उसके करीबी सोफे पर अटका था, लिहाजा वो और भी कंफ्यूज होकर रह गई। साथ मुझे ये सब पसंद नहीं है, फजूल में हमारे किरदार या ताल्लुक पर हर्फ आएगा, ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी रुसवाई बर्दाश्त कर सकता हूँ? तुमने कैसे किसी लिए मेरी रुसवाई बर्दाश्त कर तुमने सोच कैसे लिया मैं तुम्हारी रुसवाई बर्दाश्त कर सकता हूँ? निदा मेरी अच्छी दोस्त है, आज के दिन तुमसे मिलने और बात करने को दिल
बेकरार हो रहा था, सो मजबूरन उसकी हेल्प लेना पड़ी। वरना मैं, खैर छोड़ो ये बात, तो बताओ क्या अभी मेरे साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चल सकते हो? नहीं, सभी के पट से इनकार पर साथ में अपने होठ बच्चे थे। ओके, खुदा हाफिज। शदीद हर्ट होते हुए वो उठ खड़ा हुआ तो सभी का दिल उसका सुर्ख चेहरा देखकर मचल उठा था। नाराज होकर जा रहे हो? बेसाख्ता वो उसके सामने आई थी जब वो ठंडी आ भरते हुए बोला, काश मैं तुमसे नाराज हो सकता। थैंक्स, वैसे आज कौमी लिबास में बहुत प्यारे लग रहे हो। उसका मूड बहाल करने के लिए वो फर्श लहजे में बोली, जबकि वो उसको घूरकर उसकी तरफ देखते हुए बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। कसम से वो बहुत बहस लड़की हो तुम। कभी कभी तो अपनी कीमती दिल की नाकदरी पर दुख होता है। चलो खैर छोड़ो, अपना हाथ दो। कहने के साथ ही उसने सभी का बायां हाथ पकड़ा और कोट की पॉकेट से डायमंड की रिंग निकाल कर उसकी तीसरी उंगली में पहना दी। ले जनाब, आज आप हमारे नाम से मंसूब हो गई हैं। अब सिर्फ आपकी तरफ से रस्म बाकी है। इंशाल्लाह ये मरहला भी जल्द तमाम पाएगा। वैसे आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। इजाजत हो तो आपके हुस्न का थोड़ा सा सदका उतार दूं। उसकी खूबसूरत आंखों में झिलमिलाते सितारे सबरीना अजान को गुलनार कर गए थे, लिहाजा वो मुस्कुराकर उसे परे धकेलते हुए कदरे खफकी से बोली, बस यही खामी है तुम में, वक्त पे वक्त पटरी से नीचे उतर आते हो। लेकिन आज ईद है, महबूब न सही सहेली समझकर गले मिल लो। उसने हल्का सा एहतजाज किया था। जी नहीं, जाकर दोस्तों से गले मिलो। मैं अब घर जा रही हूँ, अम्मा परेशान हो रही होंगी। अच्छा बात तो सुनो। लपट कर सभी का आंचल थामते हुए वो जैसे फिर बेखुद हुआ था। सुनो, तुम्हारी अम्मा के पास मैं अपनी मम्मी डैडी को कब भेजूं? मुझे नहीं पता। धड़ धड़ करते दिल को मुश्किल संभालते हुए सैयद से उसने कहा और निदा के घर से निकल आई। वो ईद उसके लिए अब भी एक खुशगवार याद की मानंद थी। आंसू कब उसकी आंखों से कतार दर कतार बहने लगे, उसे कुछ खबर ना हुई। डायमंड की उस खूबसूरत सी रिंग पर पड़ी थी जो चंद साल कबल साद यस्तानी ने बड़ी चाहत के साथ खुद उसे अपने हाथों से पहनाई थी। जिंदगी की किसी मोड़ पर उसकी तकदीर खुद उसे साद यस्तानी से दूर करेगी, ऐसा तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। हजार मुद्दत वे मुद्दत हुई है खोई है नहीं, वे जागती नहीं रही अगर सोई नहीं। पुकारते रहे खुश कामत निकाह क्या क्या, मगर हमारे लिए तो नहीं तो कोई नहीं। फिजा में अब भी हल्की का राज था, हर सू धुंध बिखरी थी, मगर वो खुद अपने आप से बेनियाज खड़ी रो रही थी। उन दिनों घर के हालात बहुत खराब थे। कर्ज खवाहों की तकाजों ने अब्बा को अंदर ही अंदर घन की मानी चाटना शुरू कर दिया था। इस मुश्किल वक्त में इर्तिजा हमदानी ने उसकी मदद की थी। वो उमेर का दोस्त था और बाहर से डिग्री लेकर आया था। उमेर की जुबानी उसके घरेलू हालात का सुनकर उसने उमेर के अमेरिका के वीजे का इंतजाम कर दिया। अम्मा उससे बेहद मरऊब दिखाई दे रही थी, लिहाजा इर्तिजा हमदानी की आमद रफ्त उनके घर में बढ़ गई थी। इन्हीं दिनों सादा सी मगर शौक और चंचल सभी उसे पसंद आ गई, जिसका इजहार उसने अम्मा से बरमला कर दिया। अम्मा तो गोया उसका मदआ सुनकर फ्रीज हो गई। कहाँ वो महलों में रहने वाला शहजादा और कहाँ वो सभी गुर्बत की चक्की में पिसते आम से घराने की बेटी। उन्हें तो ये कोई खुदाई मोजज़ा लग रहा था। ताहम उससे पहले कि वो इर्तिजा के घर वालों को जवाब देती, सभी ने ऐन वक्त पर बगावत कर डाली। अब तक महज उसने सुना था कि मोहब्बत बेबाक होती है। पहली बार उसे खुद पर तजुर्बा हो गया था। दिल पर कोई आफत टूटने से
के डर से उसने खासी बेबाकी से अम्मा को अपनी मोहब्बत का किस्सा सुना दिया। जब गरीब घर की बेटियां मोहब्बत करती हैं तो वालिदैन जल्लाद बन जाते हैं, लिहाजा अम्मा ने भी उसका घर से निकलना बंद कर दिया, जॉब छुड़वा दी। पूरे 3 दिन भूखी प्यासी रहने के बाद भी वो जब साथ की मोहब्बत का भूत सर से ना उतरा तो अम्मा को हथियार डालने पड़े। सभी ने उनको वाज़ेह धमकी दी थी कि साथ के अलावा अगर कोई उसकी जिंदगी में आया तो वो खुदकुशी कर लेगी, और इस जैसे सरफड़ी लड़की से कोई बैद नहीं थी, लिहाजा अम्मा ने उसे कह दिया कि साथ को कहे कि अपने वालिदैन को भेज दे। सभी को तो मर कर जिंदगी मिली थी, साथ की जुनूनी मोहब्बत का अंदाजा था उसे, यकीनन उसके पराये हो जाने से वो अपनी जिंदगी गंवा बैठता, और यही नहीं वो चाहती थी। लिहाजा खुशी खुशी निदा को साथ लेकर उसके महलों जैसे घर में जा पहुंची। साथ उसे लाउंज में ही मिल गया। छुट्टी का दिन था वो शायद अभी सोकर उठा था। उस वक्त लाउंज में उसकी नफीस सी मम्मा भी मौजूद थी। सभी और निदा ने उन्हें सलाम किया और करीबी सोफे पर विराजमान हो गई। साथ उसे पहले से ज्यादा नढाल और कमजोर लगा था, और जिसकी वजह वो बखूबी जानती थी। साथ ने अपनी मम्मा से उसका सरसरी से तारुफ करवाया था। उसकी समझ इसे नहीं आ सकी थी। सभी उससे अकेले में बात करना चाहती थी, पर वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। पहले पहल वो समझी उससे इतने दिन राब्ता ना रखने पर खफा है, मगर जल्द ही इस बात का भेद भी खुल गया जब साथ की मम्मा ने चाय सर्व करते हुए खासी अपनायत से बताया, बेटा साथ ने आप लोगों को अपनी शादी में इनवाइट किया कि नहीं? इस लम्हे इन चंद अल्फाज ने सभी जैसी मजबूत एहसाब लड़की के अंदर धमाका कर डाला था। किस कदर चौंक कर उसने साथ की तरफ देखा था, लेकिन वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। तभी वो शायद हर तरह की तमीज से नाबल्द होकर पूछ बैठी, साथ ही तुम्हारी मम्मा क्या कह रही है? तुमने तो मुझसे शादी का वादा किया था। उसकी पूरी हस्ती फना हो रही थी और वो खामोश बैठा था। साथ में तो मैं ये क्या सुन रही हूँ बेटा? इसकी मम्मा भी यकीनन हैरान रह गई थी, इसलिए उससे पूछ बैठी, तो वो खामोश ना रह सका। ये सब झूठ है मम्मा, मैं इनको जस्ट अपनी दोस्त समझता हूँ मम्मा। पाताल की अथाह गहराइयों में गिरना किसे कहते हैं? कोई उस लम्हे सबरीना आसान से पूछता। मैं जस्ट इन्हें अपनी दोस्त समझता हूँ मम्मा। ये सब क्या कह रही है मम्मा? मैं खुद नहीं जानता। वो ये कह रहा था और सभी को अपना दिल रुकता महसूस हो रहा था। इस रोज साथ की मम्मा ने उसे बहुत शर्मिंदा किया था, अपनी और उसकी क्लास का फर्क समझा दिया था। वो चाहती तो साथ का गिरेबान पकड़कर जवाब मांग सकती थी, पर नहीं, क्योंकि वो सबरीना अजहान थी सबसे अलग। लिहाजा अपनी नम आंखों को रगड़ती एक अलविदाई नजर उस पर डालकर निदा के सहारे उसके घर से निकल आई थी। मोहब्बत का यह दर्द उससे सहा नहीं जा रहा था, लिहाजा करीबी पार्क में काफी देर निदा के गले लगकर काफी देर रोने के बाद जब वो घर वापस आई, उसका ताल्लुक जिंदगी से पहले जैसा नहीं रहा था। वो सबरीना अजहान जो हंसना खिलखिलाना जानती थी, जिसकी गजाली आंखों से जुगनू टपका करते थे, पट पट बोलना और बात पर खिलखिलाना जिसकी आदत में शामिल था, अब वो ही जिंदगी से भरपूर सबरीना अजहान खामोशी के किले में मकीद होकर रह गई थी। अम्मा ने उससे पूछने की बहुत कोशिश की, मगर वो तो पत्थर की होकर रह गई थी। बस कानों में एक ही जुमला गूंज रहा था, नहीं मम्मा, मैं तो इन्हें जस्ट अपनी दोस्त समझता हूँ। एक इंसान से इश्क में ठोकर खाने के बाद उसे खुदा याद आया था, वो जो कभी एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ती थी, अब पंचगाना नमाज की आदी हो गई थी। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की तरफ आने के बाद वो बहुत बदल गई थी। कड़े से कड़े एहसाब को जूते की नोक पर रखने वाली सभी अब टूट फूट का शिकार होकर जिसे जुनूबी हो गई थी। ज्यादा से ज्यादा अमीर होना उसकी जिंदगी का मकसद बनकर रह गया था। साथ को हमेशा के लिए खो देने के बाद उसने अम्मा के कहने पर इफ्तिसा हमदानी को कबूल कर लिया था, मगर फिर भी जिंदगी
लौट कर उसके अंदर नहीं आई थी। इफ्तिजा को उससे खासी मायूसी हुई थी, लिहाजा वो भी रवायती मर्दों की तरह तलाक देकर चला गया। मगर उसकी जामिद जिंदगी में तब भी कोई हलचल ना आई और ना ही आंखों से एक भी आंसू टपका। अब्बा की रहलत के बाद उमेर ने अम्मा और सभी को भी अपने पास अमेरिका बुला लिया। इन गुजरे 7 सालों में उन्हें 2 चीजें वाफर तादाद में मिली थी, दुख और दौलत। रात अब आहिस्ता आहिस्ता भीगने लगी थी, सर्दी का एहसास भी गुजरते हर पल के साथ बढ़ता जा रहा था। मगर वो रात भर जाग कर सालों बाद वक्के से रोती रही थी। निदा की बकूल साथ ने उससे राब्ता करने की बहुत कोशिश की थी। काफी अरसा वो सभी के राब्ता नंबर के लिए निदा को फोर्स भी करता रहा था। 2 साल कबल निदा ब्याह करके ऑस्ट्रेलिया चली गई तो ये किस्सा भी पाक हो गया। अब तो मासवाए भूली भटकी यादों की और कुछ भी उसके पास नहीं था। मगर जिंदगी एक मर्तबा फिर उसके जब्त का इम्तिहान लेने पर तुल गई थी। सरजमीन पाकिस्तान पर पूरे 7 साल बाद उसके कदम पड़े तो आंखें आप ही आप नमकीन पानियों से भर आई। ताया के घर का खासा शानदार इस्तकबाल किया। ताया के घर में उनका खासा शानदार इस्तकबाल किया गया था। मगर सबरीना अजहान के लबों पर मुस्कुराहट का कोई फूल नहीं खिल सका था। इस रोज गालिबन 22वां रोजा था और वो अपने मामूल की मानंद कुछ खिलौने, टॉफियां और भारी रकम ईदी चाइल्ड होम आई थी। नन्ही बच्चों में खुशियां बांटकर उसे बड़ा सुकून मिलता था। इस रोज भी वो बच्चों से मिलने ईदी चाइल्ड होम आई तो उससे ऑलरेडी मानूस बच्चे उसे देखते ही खुशी से उछल पड़े। आंटी, आप कल क्यों नहीं आई थी? एक बहुत ही प्यारी छोटी सी मासूम सी बच्ची ने उसकी गोद में बैठते हुए पूछा था, जब वो प्यार से उसके बाल संवारते हुए बोली, कल आंटी एक गांव में गई थी बेटा। गांव में क्यों गई थी? वही बच्चों की कुरेदने वाली मासूम सी आदत। पता है आंटी, कल अंकल आए थे, हम आपको उनसे मिलवाना चाहते हैं। हमने अंकल से आपकी ढेर सारी बातें की। ये अंकल कौन है भाई? अंकल हमारे दोस्त हैं आपकी तरह, वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, फिर तो मिलना पड़ेगा आपके अंकल से। अंकल आ गए। उस लम्हे सभी ने सरसरी सी गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो उसकी इस एक लम्हे में वो साकित होकर रह गई थी, जबकि आने वाले के हाथों से तमाम खिलौने छूट कर गिर गए थे। दोनों की आंखों में एक वक्त धूल उड़ रही थी। तुम साथ का सकवत बहरहाल पहले टूटा था, लिहाजा वो खुशी से बेहाल होते हुए फौरन उसकी तरफ लपट आया था। मगर जवाब में सभी ने उसे कुछ इस अंदाज से देखा कि वो शर्मिंदा होकर रह गया। ओके बच्चों, मैं अब चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। ओके। वो आगे बढ़ी तो साथ उसके सामने आ गया। कहाँ चली गई थी तुम? आई एम सॉरी, मैं आज भी तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। उसकी आंखें भर आई थी, मगर सभी ने अपना मुंह नफरत से दूसरी जानिब फेर लिया। मुझे तुम्हारे तसव्वुर से भी शदीद नफरत है। साथ फिर से क्या लहूलुहान करो मुझे, प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझे एक मौका तो दो कि मैं अपनी सफाई पेश कर सकूं। वो फिर मचला था, पर सभी के अंदाज में तब्दीली ना आई। शटाप, रास्ता छोड़ दो मेरा, नहीं तो भरे हजूम से मैं इंसल्ट कर डालूंगी तुम्हारी। कतरा कतरा करते दिल की परवाह किए बगैर वो आगे बढ़ी और अपनी शानदार गाड़ी में बैठकर रुखसत हो गई। साद यज़दानी के अंदर उस लम्हे सदियों की थकन उतर आई थी। धड़कनें अभी मामूल पर आई भी नहीं थी कि वो फिर हजर और नफरत का तमाशा मार कर गुम हो गई थी। इस रोज वो देर तक रोता रहा था और रात भी मस्जिद में गुजारी थी। चांद रात आई तो मम्मा के फोर्स करने पर वो मार्केट चला आया और वहाँ एक दफा फिर वो उसे मिल गई। कुदरत मेहरबान हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं।
اس نے اس لمحے لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ سبھی ارد گرد سے بے نیاز جانے کس کے لیے ڈھیر ساری چوڑیاں خرید رہی تھی، جب وہ لپٹ کر اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ تمہارے لیے چوڑیاں میں خریدوں گا۔ ساتھ کی مانوس اسے چونکا گئی تھی، بے ساختہ مڑ کر دیکھا تو وہ اس کے پاس کھڑا پرے پھیکے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ سبھی نے اپنے اندر کے غصے کو دباتے ہوئے چوڑیوں کی پیمنٹ کی اور سرعت سے گاڑی کی طرف بڑھ آئی تھی، مگر اس بار سعد نے اسے فرار ہونے کا موقع نہیں دیا تھا۔ جب تک مجھ سے بھاگو گی، اگر قدرت تمہیں میرے پاس لے آئی ہے تو کم سے کم دکھی دل کی روادات تو سن لو۔ زبردستی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر وہ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا تو سبھی اس بار اپنے مچلتے آنسوؤں کو بند نہ باندھ سکی اور سسک کر رو دی۔ میں جانتا ہوں تم بھی آج تک مجھے بھلا نہیں پائی ہو، میں بھی، بس کوئی وضاحت نہیں سننی مجھے۔ تمہاری محبت کے نام پر جو زخم تم نے دیا تھا وہ بھولنے کے قابل نہیں تھا سعد یزدانی۔ تم امیر لوگوں کے لیے دل کھلونے ہوا کرتے ہیں، مگر مجھ جیسی غریب لڑکیاں اسی ایک دل کے پھوٹ جانے پر ساری زندگی مسکرا نہیں پاتی۔ میں جھوٹی تھی نا؟ تم نے مجھ سے کبھی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا نا؟ ٹھیک ہے، مان لی میں نے اپنی غلطی، بہت سزا بھگت لی میں نے اپنی اس غلطی کی۔ اب پھر سے کیوں پیچھے پڑ گئے ہو میرے؟ کیوں ہر قدم پر بار بار ٹکرا جاتے ہو مجھ سے؟ برسوں کا غبار آنکھوں میں نکل رہا تھا اور سعد اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آخر کیا تھا اس لڑکی میں جو وہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکا تھا؟ بس نکل گیا تمہارے دل کا غبار؟ سبھی کے خاموش ہو جانے پر اس نے پوچھا اور ٹھنڈی آہ بھر کر گاڑی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ پتہ ہے زندگی میں ہر شخص کے لیے ماں کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ میں تمہیں اپنی صفائی میں کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں سناؤں گا، بس مختصر بتاؤں گا اس لمحے کا جو ہماری جدائی کی باعث بنا۔ پھر اس کے بعد اگر تم دل بڑا کر کے مجھے معاف کر دو تو تھینکس، بصورت دیگر سانسوں کا بوجھ تو اٹھا ہی رہے ہیں ہم۔ سعد کی آنکھیں ہمیشہ اس کے لبوں کا ساتھ دیتی تھی، لہٰذا سبھی نے اپنے آنسو رگڑ ڈالے۔ میں کبھی بھی حالات سے ہارا نہیں تھا، نہ کبھی کسی امتحان میں گھٹنے ٹیکے تھے۔ دل کا جو سودا تمہارے ساتھ کیا تھا اس میں دولت کبھی نیم و بدل نہیں کر سکی۔ میں نے تم سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جدا ہونے کا نہیں سوچا تھا، مگر تقدیر کے کھیل دیکھو کہ پورے 7 سال تمہارے ہجر کا زہر پینے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ یقین کرو میں مما اور پاپا سے تمہارے بارے میں بات کرنے ہی والا تھا کہ ایک دن صبح ناشتے کی ٹیبل پر مما نے اپنی پسند کی لڑکی سے میری منگنی کی نیوز سنا دی۔ میں نے مما کو ہارٹ کرتے ہوئے رشتے سے انکار کر دیا۔ مما نے میری بات کو اپنی توہین سمجھا اور وہ بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹر نے ان کی زندگی خطرے میں قرار دے دی اور انہیں ہر طرح کی پریشانی سے دور رکھنے کا کہا۔ تب مجبوراً اپنی مما کی جان کے صدقے میں نے اپنا دل اپنے ہی پاؤں تلے مسل دیا اور مما سے معافی مانگتے ہوئے ان کی بات مان لی۔ جس روز تم میرے گھر آئی تھی اسی رات میں نے ندا کو کال کر کے ہر بات بتا دی تھی، کیونکہ تم سے رابطے کا کوئی وسیلہ نہیں رہا تھا، مگر ندا کے منہ سے یہ سن کر کہ تم اب مجھ سے نفرت کرتی ہو اور جلدی تمہاری شادی ہو رہی ہے، اس کے تھرو میں یہ سب سن کر برداشت نہ کر سکا اور میری اپنی جان خطرے میں پڑ گئی۔ اس دوران نہ جانے کیسے مما کو تمام حقیقت کا پتہ چل گیا تو انہوں نے میری خوشی کی خاطر اپنی پسند کی لڑکی سے میری نسبت توڑ کر تمہیں بہو بنانے کا عندیہ دے دیا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں اسپتال سے سیدھا تمہارے گھر آیا تو وہاں لگے تالے کو دیکھ کر ارد گرد سے پوچھنے پر پتا چلا کہ تم لوگ یورپ سیٹل ہو گئے ہو۔ پھر ندا کے ابو نے پاپا سے میرے اور ندا کے رشتے کی بات کی، پر میری حالت دیکھتے ہوئے انہوں نے
इनकार कर दिया। मैं तो खाली हो चुका था। पिछले 7 सालों से तुम्हारी यादों के सहारे जैसे मैंने गुजारे हैं मुझे ही पता है। निदा से हजारों बार राब्ता नंबर मांगा, पर वो हमेशा यही कहकर मायूस करती रही कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हो और मुझसे राब्ता नहीं रखना चाहती। तब रफ्ता रफ्ता उस दिन को भी सब्र आ गया। अब तो मैं खासा बहल गया था कि तुम फिर मुकाबिल आ गई मेरे, और देख लो मैं पागल फिर से हाथ बढ़ाकर चांद पानी के लिए बेकरार हो गया। साथ खामोश हुआ तो उसकी आंखें में मचलते पानी ने सभी का दिल जैसे मुट्ठी में ले लिया। निदा ने कभी तुम्हारी किसी मजबूरी का जिक्र नहीं किया साथ, और मेरी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की कहानी भी झूठ है साथ, क्योंकि मेरा सिर्फ निकाह हुआ था। रुखसती की नौबत तो तुम्हारी मोहब्बत के रोग ने आने ही नहीं दी, यहाँ तक कि वो कागजी ताल्लुक एक रोज चुपचाप खत्म हो गया। साथ के लिए इंकिशाफ हैरान कुन और खुशगवार था। तभी वो अपने आंसू चुनकर मुस्कुराते हुए बोला, ओ तो इसका मतलब तुम्हें अपनी रुखसती ना होने का दुख थका रहा है। शट अप, जिंदगी में सिर्फ फजूल बोलना ही सीखा है तुमने। बरसों बाद वो अपनी पुरानी आदत में वापस लौटी थी। अच्छा, मैं फजूल बोलता हूँ तो तुम्हारे मुंह से कौन सा फूल चढ़ते हैं? क्या कह रही थी उस दिन के मुझे तुम्हारे तस्वुर से भी नफरत है। साद यज़दानी, अगर ये सच है तो बुला क्यों नहीं पाई साद यज़दानी को? खफीफ सा तंज करते हुए साद ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा था, जब वो मुस्कुरा कर खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, साद यज़दानी बड़ा ठीक बंदा है। लाख कोशिश की दिल से निकल कर बाहर फेंक दूं, मगर दिल दरबार की चौखट पकड़ कर बैठ गया। फिर मैं क्या करती? इस बार साद दिल खोल कर हंसा था। वेल, इसका मतलब तुम जिंदगी में कभी भी साद यज़दानी से जीत नहीं सकती। खैर छोड़ो, 7 साल बाद हमारे लिए तो ईद आई है, क्यों न इसके एक एक पुरमसरत लम्हे से लुत्फ कशीद करें। चलो, और तुम्हें ईद की दिल खोल कर शॉपिंग कराऊं। 7 साल पहले मंगनी की थी, इस ईद पर रुखसती लाजमी है। क्यों? मम्मा बहुत शिद्दत से मेरे बच्चों को गोद में खिलाने के लिए तरस रही हैं। सभी का हाथ थाम कर उसने कुछ इस अंदाज में कहा कि सभी ने खफकी से उसे देखते हुए एक जबरदस्त मुक्का उसकी शानी पर रसीद कर दिया। जितने चाहो सितम कर लो लड़की, अनकरीब सारे बदले बेपाक कर दूंगा मैं भी। खूबसूरत आंखों में रक्स करते जुगनू सबरीना अजहान को खुद में सिमटने में मजबूर कर गए थे। तभी वो बेनियाजी से खिलखिला कर दिल ही दिल में अल्लाह की पाक ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करते हुए साद यज़दानी में हमरा अनारकली बाजार की तरफ बढ़ गई कि अब वाकई उसकी साजिद के संग जुड़ी खुशियां उसे महज थोड़ी ही दिनों के फासले पर ही खत्म शुद।